नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। यूरोप ਅਤੇ यूके ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਰਤੀ ਮੱਲ ਜੀ ਹਾਰਡਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਆਈ ਵਰਕ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇसी ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਜਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਟੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UAE ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਵਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਲੋਟਸ TV ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ MA, MPhil, PhD ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਰਨਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ USA ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आप जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सदे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर आए थे और 17 तारीख को वुलवरहैम्पटन में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ कि यहाँ पर आपको सुनने के लिए 1000 से ज़्यादा लोग आए और आप जी ने बहुत ही अच्छा भाषण वहाँ पर दिया, जिसका लोगों पर
बहुत अच्छा असर हुआ है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो अब जो मैंने मौजू चुना है उसके लिए आपसे मैं शुरुआत करता हूँ कि बहुजन आंदोलन के इतिहास की शुरुआत तथागत बुद्ध के इतिहास से है, ऐसा लोग मानते हैं। तुम्हारा अपना क्या मानना है इसमें? सबसे पहले तो मैं लोटस टीवी के माध्यम से लोटस टीवी के श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि और साधुवाद देता हूं कि आपने इतना समसामयिक और इतना कॉन्टेम्पररी टॉपिक चुना और आपने ध्यान रखा अपनी उन श्रोताओं का जो हजारों मील भारत से आकर के बसे हैं और उनको आपने बहुजन आंदोलन के इतिहास के बारे में जो जानकारी देने की फीलिंग रखी है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात आपने जो जैसा बताया कि जब तक आप अपने नायकों का, अपने आंदोलन का इतिहास नहीं जानेंगे तो आप आज के समय में कैसे अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे जी। आप कैसे बनाएंगे अपने समाज को, उनको सजो के कैसे ले जाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि आपने ये टॉपिक चुना जी। तो इसके तहत जैसा कि आपने पूछा कि इतिहास, सचमुच अगर भारत में देखें तो दो कतार रही है आंदोलन की मानने वाली जी। एक आंदोलन वो लोग थे जो वेद को मानते थे जी। दूसरा जो लोग वेद को नहीं मानते थे जी। वेदों के मानने वाले पाग भगवान मनुवादी लोग हुए जी। वेद को न मानने वाले कमेरे लोगों की संस्कृति हुई जिसकी शुरुआत बुद्ध से होती है 564 बुद्ध बीसी, यानी कि जो क्राइस्ट के पहले से ईसा पूर्व वहां से शुरुआत होती है और बुद्ध भगवान पहली बार आकर के भारतवर्ष में, जो भारत में जो व्याप्त व्याधि थी, जो वहां पर रूढ़िवादी आ गई थी, उससे वो लड़ाई लड़ते हैं और जो लोग दीगर कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, उनको अपने संघ में दर्द, पीड़ा, गुर्बत से निकाल करके एक नया फलसफा देते हैं कि आप अपना दीपक स्वयं बन सकते हो। चमत्कार की भाषा नहीं कि चमत्कार हो जाएगा और हमारा भाग्य बदल जाएगा जी। भगवान बुद्ध ने, और हम भगवान क्यों कहते हैं जी। भगवान वो वाला भगवान नहीं जो आपकी मनोकामना पूर्ण करता हो जी। भग रागो, जिसने राग पर विजय प्राप्त कर ली हो, भग मोहो यानी कि मोह पर विजय कर ली हो, भग ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या पर विजय कर ली हो। जो लोग राग, द्वेष और मोह इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनको जीत लेते हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने राग, द्वेष, ईर्ष्या इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी और ऐसा ही इंसान समाज में जब राग, द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो अपने जिंदगी को संवार सकता है, सुधार सकता है और फिर वो आगे चल सकता है। तो ऐसा आंदोलन भगवान बुद्ध ने शुरू किया और सबको ऐसा ज्ञान दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये एक तरह से उनका भी, आप जब बुद्धम यानी कि बुद्धि खोलेंगे तभी आप अपना जो है मार्ग तलाश सकते हैं। और आप लोगों ने हजारों मील से आकर के अपनी बुद्धि खोली और अपने जीवन के अंदर आपने मसाइल को चलाया, आपने आगे बढ़ाया। लेकिन संघ की आवश्यकता भी पड़ी तो आपने संगठन भी बनाए। अब ये नहीं जानेंगे आपने क्यों संगठन बनाए तो आप फिर जो है पीछे रह जाएंगे। संगठन आपने बनाए जानबूझ करके, क्योंकि बिना संगठन के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो जान करके मानना और बिना मानने, बिना जाने मानना, इसमें अंतर होता है। तो ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं कि इतिहास को बता रहे हैं कि जान करके अगर मानेंगे बुद्धा को
तब कहीं जा करके आपके आंदोलन की बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए बुद्ध स्थापित करते हैं आपके आंदोलन की शुरुआत को, आगाज को, कि आप चमत्कार से जिंदगी नहीं जी सकते, आपको बुद्धि से जिंदगी जीनी पड़ेगी संगठन के साथ। प्रोफेसर साहब, आपने मेरी एक और समस्या इस सवाल से हल कर दी है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने बुद्धा का जो धर्म है वो बहुत जल्दी में अपनाया है, बहुत देर में अपनाया है, लेकिन आपने हिस्ट्री को आगे लाकर ये बता दिया है कि बाबा साहब का जो मैसेज है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, जो है वो बुद्धा की थ्योरी से ही निकला है। तो इसका मतलब ये तो बहुत देर से बाबा साहब ने जब ये संघर्ष शुरू किया तब से ही वो बुद्धा के साथ जुड़े हुए थे। इस जो आपने जवाब दिया है उससे इसका भी हल निकलकर सामने आता है। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। बहुजन आंदोलन के दूसरे पड़ाव में संत श्रोमणी रविदास जी, कबीर जी, चोखा मेला जी संत हैं। आपका क्या मत है? देखिए, 5वीं शताब्दी में 563 और 64 के बीच में बुद्ध का जन्म होता है, इसलिए हम उनको पहले नाम ले रहे हैं जी। हम किसी को बड़ा छोटा करके नहीं देख रहे हैं जी। क्योंकि वो पहले जन्मे थे जी। उनका जो उनका मैसेज था वो पूरे विश्व में फैला, इसलिए हम उनको पहले याद कर रहे हैं। अब हम जैसे संत शिरोमणि की बात कर रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास की बात कर रहे हैं, तो उनका जन्म मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं इसलिए थोड़ा सा पता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ और कबीर महाराज भी उसी समय जन्म लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी में अगर बहुजन आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो 5वीं शताब्दी बीसी ईसा पूर्व और 15वीं शताब्दी ईसा के बाद एडी जिसे कहते हैं हम, तो ये जो है समय अंतराल 15वीं शताब्दी में संत शिरोमणि आते हैं और बनारस के अंदर बनारस के अंदर पोंगा पंथ फैला हुआ था उसको वो चैलेंज करते हैं कि तुम फिर से चमत्कार की भाषा की बात कर रहे हो और देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तुम अस्पृश्य समाज को मंदिर में नहीं आने देते हो, तुम अपना मंदिर रखो, अगर हमारा मन चंगा है तो हमारी कटौती में वो रखते थे एक काठ का बर्तन जिसके अंदर पानी रखते थे, क्योंकि जूते का काम करने में पानी लेना पड़ता था, तो उसको कठौती कहते हैं। तो वो कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुझे मंदिर में नहीं जाना। और फिर उन्होंने जो है बताया कि आप एक ऐसे समाज की संकल्पना कीजिए जिसको उन्होंने बेगमपुरा कहा, जिसमें कोई दुख, जिसमें दर्द ना हो। उसके बाद आप देखें कि कबीर साहब लताड़ लगा रहे हैं, लताड़ लगा रहे हैं पोंगा पंथ को, और हिंदू और मुसलमान दोनों को लताड़ लगाते हैं और बताते हैं कांकर पाथर जोर के मंदिर लई चिनाए ता पर चढ़ मुंडा बाग दे क्या बहरा बैग खुदाए। तो ये जो पोंगा पंथ है इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जो है आपको अपने समाज में व्यक्ति की पूजा करनी पड़ेगी, मानव की पूजा करनी पड़ेगी। तो एक तरह से समाज के अंदर दबे कुचले और पृथक किए गए, अलहदा कर दिया गया था, उन लोगों की आवाज बन करके संत शिरोमणि रविदास उभरते हैं और अपने साथ लेकर के चलने का बीड़ा उठाते हैं। और इसीलिए उनकी वाणी को नानक जी आकर के जगह देते हैं अपनी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये दूसरा पड़ाव दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप जी ने चोखा मेला का कुछ वर्णन नहीं किया। चोखा मेला आप देखेंगे कि जो है वो वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया में काम कर रहे हैं और उनके भी एक संत परंपरा का निर्वाह है। वो भगवान और भाग में विश्वास नहीं करते, जैसे रविदास महाराज, संत कबीर, उसी तरह संत चोखा मेला ये भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और ये कर्म में विश्वास करते हैं और कहते हैं कमेरों की संस्कृति को आगे बढ़ाइए तो आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। जो बहुजन के तीसरे चरण में ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु सामने आते हैं।
उनके विषय में कुछ बताइए। देखिए, जो संत शिरोमणि रविदास के बाद 15वीं शताब्दी से निकल करके हम लोग 18वीं शताब्दी में 1848 के आसपास फूले का जो है आंदोलन शुरू होता है पूना में जी। और पूना के अंदर जो है वह अलग जगाते हैं फिर से शिक्षा लेने की। जो संत रविदास जी कह रहे हैं कि भाई आप अगर अपना आंदोलन आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा जी। बुद्धा कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम का जानी, बुद्धम का मतलब बुद्धि बढ़ाइए, अपनी सोच बढ़ाइए। वही एक तरह से आप देखेंगे कि रविदास जो फूले महाराज हैं, फूले साहब, फूले जी, ज्योतिबा फूले भी कह रहे हैं शिक्षित हो, यानी कि आपको शिक्षा बिना मति गली, शिक्षा के बिना आपकी बुद्धि चली गई है, इसलिए आपको शिक्षित हो। शिक्षा बिना मति गली और मति बिना गति गली, बिना बुद्धि के आपकी जो गति थी वो चली गई है, इसलिए आपको शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा पर प्रहार किया और शिक्षा इज बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद उन्होंने फिर से भगवान को नहीं माना और उन्होंने अपना जो एक आंदोलन था उसको जो है आगे बढ़ाया और एक जो शिक्षा बहुत बड़ी दी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया जी। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिनके हम आगे जिक्र करेंगे, वो पढ़ करके उन महिलाओं को, उन दलितों को, उन अस्पृश्यों को, उन मूल निवासियों को उन्होंने शिक्षा दी जिनको कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जो आंदोलन संघर्ष दिखाई दे रहा है कि वो करके दिखा रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। उसी तरह नारायणा गुरु ने जो दक्षिण केरला के अंदर अलख जगाई और उन्होंने जो है SNDP आंदोलन चलाया और उसके तहत उन्होंने जो वहां के अस्पृश्य समाज के लोग उस समय माने जाते थे, आज वो ऊपर उठ गए हैं अस्पृश्यता से, इड़वा समाज के लोग थे, उनको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी शिक्षा के लिए काम की, उनको जो है संगठन के अंदर लेकर के आए और उनका आंदोलन बढ़ाया। इसलिए हम फूले महाराज और नारायणा गुरु दोनों को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुजन आंदोलन के चौथे चरण में शाहू जी महाराज, रामास्वामी नायकर पेरियार, इनको रखा जाता है। इनका आंदोलन में क्या योगदान है? देखिए, साहू जी महाराज ने एक ऐतिहासिक, साहू जी महाराज आप जानते हैं कोल्हापुर के राजा थे और राजा होते हुए भी उनको ब्राह्मणवाद, मनुवाद का सामना करना पड़ा था और उनको जो है लोगों ने उस इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा था। लेकिन साहू जी महाराज ने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया। अपने जो वो थे अपने राजा, उनका जो एम्पायर था उसके अंदर उन्होंने एक क्रांतिकारी 26 जुलाई 1902 में उन्होंने आरक्षण दिया जो गैर ब्राह्मण जातियां थीं, बैकवर्ड क्लासेस, दलित, इन सबको, और उस आरक्षण का परसेंट था 50, यानी कि आधी नौकरियां अपने राज्य में उन्होंने भरी बैकवर्ड क्लासेस और दलित। इतना ही नहीं, उन्होंने आंदोलन एक ऐसा चलाया अस्पृश्यता के खिलाफ। एक चाय वाला, उसको एक अस्पृश्य समाज के चाय वाले को उन्होंने पैसा दे करके कहा तुम जाके चाय का धंधा करो। जब लोग उसकी चाय नहीं पीते थे तो राजा खुद जाते थे वहां पर उसकी चाय पीने के लिए। जब राजा जाता था तो प्रजा अपने आप जाएगी। तो अस्पृश्य समाज के व्यक्ति से उन्होंने चाय की दुकान खुलवा करके उस पर चाय पी करके अस्पृश्यता के विरोध में आंदोलन चलाया। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर साहू जी महाराज को फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा करते थे कि डेमोक्रेसी अगर सीखना है तो साहू जी महाराज से आप सीखिए। पेरियार के आंदोलन को हम तमिलनाडु लैंड के हिसाब से देखते हैं।
जी और वहां पर पेरियार ने ब्राह्मणों के खिलाफ, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट कहते हैं, जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। जी और कांग्रेस को छोड़ करके 1925 में जी पेरियार आत्मनिर्भर सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाते हैं। जी और सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन ही नहीं चलाते, वो केरला के वैक्यूम मंदिर के अंदर, वैक्यूम में एक मंदिर था जी उसका सत्याग्रह लीड करते हैं। जी और वो स्वयं नहीं लीड करते, बल्कि जब उनको वो त्रावणकोर के राजा जेल में बंद कर देते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी बहन उस मंदिर के आसपास जो रोड थी उस पर चलने का आंदोलन चलाते हैं। जी तो पेरियार का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दक्षिण में जो पिछड़े समाज के लोग थे, ओबीसी लोग थे, उनकी जो इमेंसिपेशन था, उनका जो उत्थान था, उसका आंदोलन वो चला रहे थे। तो इसलिए हम पेरियार को भी अपने साथ अपने बहुजन आंदोलन में इस्तेमाल और उनको याद करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने दक्षिण में जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनका आंदोलन चलाया। जी लेकिन यहाँ से मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेंशन किया है शाहू जी महाराज का कि उन्होंने 2002 में रिजर्वेशन दी थी अपनी स्टेट में, कोल्हापुर में, और वो भी 50% थी। आज प्रेजेंट में रिजर्वेशन की क्या परिस्थिति है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, भारत में जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो 3 प्रकार से मिलता है। एक है राजनीतिक जी रिजर्वेशन, जी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत मिलता है जी। और एक आरक्षण है नौकरियों में जी। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत मिलता है जी। और तीसरा आरक्षण है शिक्षा का जी जो 16(4) में मिलता है जी। इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो आज का विशेषकर जो रिजर्वेशन राजनीति में है वो करीब करीब भर दिया जाता है। जो उसकी सीटें विधानसभा में और लोकसभा में जो सीटें हैं जी। वो करीब करीब सब भर दी जाती हैं जी। लेकिन नौकरियों का आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है जी। भारतवर्ष में कुल नौकरियों में आप देखेंगे कि 1,98,00,000 जॉब्स हैं जी। जिसमें से एससी और एसटी के लिए 45 लाख जॉब बनती हैं, 35 लाख जॉब केवल भरी गई हैं। जी। यानी कि उनका कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और लोग ये कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो मिला जा रहा है। एक बड़ा आक्षेप लगता है कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था। ये नितांत झूठ है। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आपने 35 लाख कहा है वो जब पीक था तब था। अब जो हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के जो वर्कर हैं, जब वो रिटायर होते हैं उनको फिल ही नहीं करते, वो तो अब बहुत नीचे आ गया है। बिल्कुल। और ज्यादातर जो पोस्ट हैं वो सी और डी में हैं जिसमें स्वीपर समाज के भी लोग आते हैं रिजर्वेशन, तो इसलिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए, कौन सा आरक्षण 10 वर्षों के लिए था? ये राजनैतिक आरक्षण जो संविधान की अनुच्छेद 330 और 332 के तहत आता है वो आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। नौकरियों के लिए और शिक्षा के लिए किसी भी आरक्षण की कोई भी समय सीमा नहीं रखी गई थी। इसलिए यह गलत प्रचार बंद होना चाहिए कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था और पीढ़ी दर पीढ़ी लिए जा रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमारा ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बहुजन अंदोलन ਦਾ इतिहास जो है वो जारी रहेगा। किते जाना नहीं, ब्रेक तो बाद एक बार फिर मिलते। ब्रेक तो बाद आप जी का एक बार फिर स्वागत है, क्योंकि जो अज का विषा है बहुजन अंदोलन समाज का जो इतिहास है, असी उसके बारे प्रोफैसर साहब जी नाल गल कर रहे हाँ। सो प्रोफैसर जी,
मेरा आगे का जो प्रश्न है, बहुजन आंदोलन के आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम, सर्वोपति बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग इतिहास में चल रहे थे कि सबसे पहले जो है चरण में बुद्धा आए, दूसरे चरण में संत शिरोमणि रविदास, उसके बाद फिर हमने देखा कि फूले और नारायणा गुरु का आंदोलन दिखाई पड़ता है, उसके बाद साहू जी का और हमारे पेरियार साहब का। उसी के आसपास आधुनिक काल में, आधुनिक काल इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोग आ चुके थे और ब्रिटिश से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश वाले जो थे वो कानून ला चुके थे जी। और यहां तक कि राजनीतिक जो वो रिफॉर्म्स था उसको भी वो कर चुके थे, इसलिए हम उनको आधुनिक काल में कह रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का पदार्पण सार्वजनिक जीवन में 1919 में होता है पहली बार, जब वो साउथ बरो कमेटी को जो है अपना ज्ञापन देते हैं। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर मॉडर्न एकदम लीडर थे, कोलंबिया विच पढ़ चुके थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ चुके थे, बार एट लॉ थे, इसलिए वो एक मॉडर्न लीडर थे। फूले ने बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं देखी, पेरियार ने बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं देखी, बाबा साहब अंबेडकर फॉरेन एजुकेटेड थे, इसलिए उनको मॉडर्न आंदोलन के हम जो है सबसे ऊपरी पादान में रखते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपना जब आंदोलन शुरू किया तो एक नवीन प्रकार से उसका एकदम न्यू पर्सपेक्टिव था, जिसके तहत वो कह रहे थे हमको अधिकार चाहिए, अधिकारों का आंदोलन, पानी लेने का अधिकार, टेंपल में एंट्री करके दिखाने का अधिकार, और यहां तक कि मनुस्मृति दहन किया उन्होंने। ये जो सामाजिक आंदोलन था उससे बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी सोई जनता को जगाया, हिलाया और कहा कि देखो तुम लोग जिस धर्म में, हिंदू धर्म में जिसमें बसे हुए हो, उसके दरवाजे तुम्हारे लिए कितने 5 साल तक कालाराम टेंपल आंदोलन चला, कालाराम मंदिर का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर ने प्रवेश के लिए 5 साल तक चलाया और उसके अंदर उनको एंट्री नहीं मिली। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि देखो जिन मंदिरों में तुम घुसना चाहते हो उसके ताले कितने कस के बंद हैं, तो तुम कहां जाना चाहते हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने अपनी गाड़ी मोड़ दी और वो राजनीति की तरफ चल गए और राजनीतिक आंदोलन शुरू करके उन्होंने दल बना करके अधिकार ले लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया, लेकिन वो गांधी जी ने मना किया, तो फिर बाद में जो है उनको मिक्स्ड इलेक्टोरेट मिला, जिसके तहत जो पूना पैक्ट हुआ उसके तहत सीटें रिजर्व हो गई दलितों, पहली बार अस्पृश्य एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व हुई राजनीति में। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को हम लोग 5 पड़ाव में देखते हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, उसके बाद फिर संवैधानिक और धार्मिक। तो ये बड़ा आयाम बाबा साहब अंबेडकर के मॉडर्न युग में मॉडर्न आंदोलन का दिखाई पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। कृपा करके तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों में क्या समानता है, ये हमें बताएंगे कि ये 4 महापुरुष जो हैं इनमें क्या समानता है? ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर लोग ये जानते नहीं हैं कि हम लोग उनको क्यों मान रहे हैं। बुद्ध को, संत शिरोमणि रविदास को, बाबा साहब अंबेडकर को, फूले को, इन सब को क्यों मानते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम ये नहीं कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, हम उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया। तो वो क्या मार्ग था? बुद्धा, संत रविदास महाराज
और बाबा साहब अंबेडकर, अगर आप देखें कि ये मैत्री का प्रोग्राम बना रहे थे, ये जो मैत्री का एक भाईचारे का जो आंदोलन है वो दिखाई पड़ता है। बुद्ध ने तो करुणाशील मैत्री यानी कि भाईचारा, मित्रता ये बताया। रविदास महाराज ने बताया जो हम सहरी सो मीत हमारा, वो उन्होंने भी वो किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो फ्रेटर्निटी की बात करी। उधर बुद्ध ने जाति पर प्रहार किया और उन्होंने संघ में, अपने संघ में सबको शामिल किया जाति प्रथा को तोड़ते हुए। और वही आप पहली बार देखेंगे कि जाति प्रथा के ऊपर पहला प्रहार बुद्धा ने किया। दूसरा प्रहार आप देख रहे हैं, संत शिरोमणिलाल कहते हैं जाति जात में जात है, तिन केलन के पात रैदास न मानुक बन सके जब तक जात ना जात, यानी कि वो भी जात तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जात में जकड़े हुए थे उस समय, जात में जात, यानी कि आप जैसा जानते हैं कि भारतवर्ष में 6000 जातियां हैं और जो 3743 जातियां तो ओबीसी में हैं, 1231 और 38 जातियां शेड्यूल कास्ट की हैं, और बैकवर्ड क्लास मुस्लिमों में भी जातियां हैं, सिखों में भी जातियां आ गई हैं, और क्रिश्चियंस में भी जातियां हैं। तो इन जातियों को तोड़ने का जो एक सिलसिला था वो बुद्ध से शुरू होता है और संत शिरोमणि रविदास तक आता है। यहां तक कि कबीर महाराज कह रहे हैं नाम कबीरा जात जुलाहा बन बन फिरू में मासी, और बाबा साहब अंबेडकर एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं, जात को विखंडन की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ मैत्री, दूसरी तरफ जात को तोड़ने का, और तीसरी तरफ शिक्षा का जो पैगाम है, शिक्षित हो। अगर आप ये नहीं है कि जो है, आपको पता शास्त्रार्थ हुआ जब वाराणसी में, तो बाकायदा संत शिरोमणि रविदास ने हराया वहां पर ब्राह्मणों को, और फिर ब्राह्मणों ने उनकी पालकी का जुलूस निकाला पूरे बनारस में। तो ये जो शिक्षा का ज्ञान था वो बुद्ध से शुरू होता हुआ बाबा साहब अंबेडकर तक आता है। तो ये समानताएं, मैत्री, शिक्षा और जाति का विच्छेदन, ये दिखाई पड़ती है। और वेदों को न मानना, वेदों में कोई विश्वास नहीं है, ये समानता दिखाई पड़ती है। मनोकामना पूर्ण होने की नहीं, बल्कि लेबर की संस्कृति का जो है वहां पर पैगाम है कि आप अगर मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन यह नहीं कि बैठे रहोगे और चमत्कार हो जाएगा। ये शिक्षा नहीं है इन तीनों चारों के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और बात है, संतों का आंदोलन मुक्ति का था या भक्ति का था? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अक्सर ये भक्ति आंदोलन के अंदर इनको दिखाई पड़ता है कि ये भक्ति कर रहे थे, लेकिन आप ये देखिए कि ये किसी की भक्ति नहीं कर रहे थे। आप देखिए, संतों ने जब वाणी लगाई तो उन्होंने कहा कि आपका मन चंगा तो कटौती में, मन प्योर होना चाहिए आपका। अगर मन चंगा है तो आपके जो मसाइल हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर हो सकती हैं। कबीर महाराज लताड़ लगा रहे थे कि घर की चाकी कोई न पूजे, ताका पीसा खाए। तो आप पत्थर पीजे, पापड़ पूछे, पत्थर को पूज रहे हैं, पीपल को पूज रहे हैं, लेकिन घर की चक्की कोई नहीं पूज रहा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, त्यों त्यों घट घट राम बसे, जग में ढूंढे माही। तो हमको कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे अंदर बसा हुआ हूं। और वो उनका सबसे बड़ी बात जो थी, ये जो संतों का आंदोलन था, ये निराकार ब्रह्म की बात कर रहे थे। निराकार यानी कि कोई आकार नहीं है उसका। लोग वो पूछते हैं, मूर्तियां पूछते हैं, लेकिन इन संतों ने जो आंदोलन चलाया उसमें निराकार जो था वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, उसकी वो पूजा कर रहे थे। ये नहीं कि किसी मूर्ति की वो पूजा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे इंसान अपने जीवन के अंदर मुक्ति प्राप्त कर सके,
भक्ति के लिए नहीं कर रहे थे कि आप जो है उसके में रम जाएं, रमने के लिए उनका आंदोलन नहीं था। वो रास्ता दिखाते थे कि देखिए इस रास्ते से आप अगर चलेंगे तो आप एक नए प्रकार का समाज, और इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं जो संकल्पना थी समाज की, जी बेगमपुरा की संकल्पना संत रविदास ऐसे नहीं कर रहे थे, एक ऐसा जो कि जहां पर कोई गम ना हो। जी तो ये भक्ति का आंदोलन हुआ कि मुक्ति का हुआ। हमारे अंदर गुर्बत थी, दर्द था, पीड़ा थी, इसको हटा करके बेगमपुरा की स्थापना। लेकिन हुआ क्या कि हमने उसको भक्ति मान ली और हम भक्ति में रम गए हैं। हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो हमारी मुक्ति चाहते थे। यही मैं आपसे कहना चाहता था कि आज जो कुछ हो रहा है, जो रियलिटी में श्री गुरु रविदास जी थे, उनको भूलकर आज उनको भक्ति में घसोड़ लिया गया है। जो कहते हैं कि अगर आप उसकी पूजा करोगे तो आपका सब कुछ हल हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पूजा के खिलाफ थे, वो पूजा नहीं करवाना चाहते थे, वो पूजा के खिलाफ थे। और इसीलिए लताड़ लगाई उन्होंने ब्राह्मणवाद को काशी के अंदर रह करके कि तुम पूजा, हम तो कमेरे लोग हैं और हम अपना का कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा, इसमें कहाँ पूजा है, इसमें तो मित्रता झलक रही है। और वो कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, रविदास जन्म के कारण होवत न को नीच, रविदास जन्म के कारण होवत न को नीच, मानुख नीच कर डारे है ओछे काम की कीच। आपके ओछे काम की जो कीच है, कीचड़ है, वो आपको नीचा करता है। तो वो तो कर्म प्रधान थे, धर्म की कहीं बात ही नहीं, कर्म करना और काम करना। और इसीलिए उनको जब सोना मिला, चांदी मिली और जो है लोग मिले, तो वो गए नहीं महल के अंदर, उन्होंने अपनी कुटिया नहीं छोड़ी। तो ये क्या दिखाता है, उनके जीवन को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो ये बात बड़ी हो रही है। क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ से ये कहता हूँ, जो कुछ आप समझा रहे हैं इससे निचोड़ ये निकलता है कि तथागत बुद्ध और गुरु रविदास जी की फिलॉसफी में कोई अंतर नहीं था। नहीं, मुझे तो देखिए सब के सब जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति के दुख और दर्द को निकालने की बात कर रहे हैं जी। ये समानता दिखाई पड़ रही है। जैसा कि मैं पढ़ पाया हूं, मैंने रिसर्च किया है, आंदोलन में मान्यवर कांशीराम इसी प्रकार के आंदोलन की संकल्पना करते थे और इसीलिए उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इन महापुरुषों को, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले कांशीराम जी ने 1981 में ABC एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल भी बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि धर्म को अभी हम राजनीति से अलग रखते हैं। और एक प्रिंसिपल था उनका कि नहीं, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। तो धर्म और राजनीति अलग अलग की बात थी, ये मान्यवर कांशीराम मानते थे, लेकिन उनको ये समानता दिखाई पड़ती थी बुद्ध, रविदास, फूले, साहू, पेरियार और बाबा साहब अंबेडकर के फलसफे के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुजन आंदोलनों में बहुजन महिला नायिकाओं का क्या योगदान रहा है, उनके नाम हमें बताएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपने पूछा, क्योंकि अक्सर हम बहुजन आंदोलन में पुरुषों की तो बात करते हैं, अपनी महिलाओं की बात नहीं करते। लेकिन कोई भी आंदोलन बिना महिलाओं के कंट्रीब्यूशन और उनकी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता जी। और इसलिए हमें उनको याद करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अगर किसी महिला, बहुजन महिला योगदान की हम बात करते हैं तो वो माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी, जो कि अनपढ़ थी, लेकिन उनको जब समाज के अंदर दलित और अस्पृश्य समाज, बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाने की बात आई तो ज्योतिबा फूले को कोई टीचर नहीं मिल रहा था जी, कोई महिला टीचर नहीं मिल रही थी। और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी ज्योतिबा फूले को पढ़ाया और ज्योतिबा फूले ने भी खूब मेहनत और मशक्कत करके पढ़ा और फिर अपने जो महिलाएं थी उनको उन्होंने पढ़ाया जी। ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले जी ने उनके आंदोलन में जो विधवा उस समय हुआ करती थी, उनके बाल काट दिए जाते थे जी। ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर के माता सावित्रीबाई फूले ने नाइयों को इकट्ठा किया जी, और नाई से कहा कि हम
ये न काटे बाल, जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं, उनका बाल न काटे, इसके खिलाफ उन्होंने नाई से मिलकर के आंदोलन चलाया। जी। फिर अपने घर के अंदर उन्होंने प्रसूति गृह खोला, जहां पर जो बिन ब्याही माएँ होती थी वो अपना बच्चा जन करके छोड़ करके जा सकती थी, और फिर उन्होंने उसी में से एक बच्चे को गोद लिया। तो ये उनका आंदोलन के अंदर ज्योतिबा फूले कभी नहीं होते अगर माता सावित्रीबाई फूले उनका साथ न देती जी। तो ये उनका बड़ा भारी योगदान था। दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो महिला नायक हमारी हैं बहुजन, जिनको हमें याद करना चाहिए, वो हैं उदा देवी पासी जी। उदा देवी पासी बेगम हजरत महल जो वहां की बेगम थी लखनऊ की जी। उनकी आर्मी में कमांडर इन चीफ हुआ करती थी जी। और उन्होंने ब्रिटिश सेना से लड़ाई करते करते बहुत सारे सेनानियों को मारा, और उनका लखनऊ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है उदयगंज, उनके नाम से, उदा देवी पासी के नाम से वो नाम पड़ा। तीसरे लेवल पर मैं जिक्र करना चाहूंगा झलकारी बाई कोरी का। जी। झलकारी बाई कोरी रानी झांसी के जो है प्रांगण में थी और उनके साथ रहती थी जी। और वो दिखने में भी उन्हीं के जैसे थी। जब अंग्रेजों ने धावा बोला तो रानी झांसी का उन्होंने भेष धारण करके अंग्रेजों को अपनी तरफ उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच करके उनको बहुत दूर ले गई जी। और वहां पर उनसे लड़ाई हुई और उन्होंने अपनी जान और अपने बच्चे की जान दे दी जी। ये जो कहीं ना कहीं हमारी जो नायिकाएं हैं, अस्पृश्य समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, मूल निवासी समाज की जो नायिकाएं हैं, उनका योगदान हमारे आंदोलन के अंदर हमेशा रहा है, जिसको हम लोग जान नहीं पाए। अगर हम माई अंबेडकर का देखें, अंबेडकर के, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के अंदर, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कभी भी उनसे शिकायत नहीं करी और हमेशा रमाबाई जो है वेट करती रही। बाबा साहब अंबेडकर जब फॉरेन कंट्री में एजुकेशन करने गए तब भी उन्होंने कोई रौला नहीं पाया, और जब वो इंग्लैंड गए तब भी नहीं, और उनको वो निग्लेक्ट करते रहे तब भी उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, शांतपूर्वक कंट्रीब्यूशन, इसको भी हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि बहुजन महिलाओं के योगदान के बगैर हमारा आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। सो मेरी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन आंदोलन में क्या किसी और मूल निवासी का भी योगदान है? हाँ, देखिए, ये अगर आप देखें कि जो बहुजन आंदोलन चला है, इसके अंदर मूल निवासियों में अगर हम एक नाम या दो नाम लें तो हमको लगता है कि बिरसा मुंडा का नाम जरूर लिया जाना चाहिए जी। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा प्रजाति के थे और सुदूर पहाड़ों में रह रहे थे, उन्होंने वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और वहां के आदिवासियों को जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उससे उनको बचाया। तो एक तरह से बिरसा मुंडा भी जो बहुजन आंदोलन के एक बहुत घनिष्ठ साथी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, साथ में अपना योगदान कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर लोकल लेवल पर देखें तो महाराजा बिजली पासी और लखना पासी, इन सब को भी हम कहते हैं कि हम आंदोलन के अंदर वो अपना योगदान दे रहे थे। तो ऐसे बहुत से अनाम बहुजन समाज के योद्धा हैं कोने कोने में, जैसे मंगूराम वालिया हैं। मैं आने वाला था इधर में। जी, मंगूराम वालिया हैं जो आपके पंजाब से आते हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया। हमारे यहाँ स्वामी अच्युतानंद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। भाग्य रेड्डी वर्मा हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसी तरह जो आप कुमार आसन हैं जो केरला से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुजन मूल निवासी नायक हैं जिन्होंने समय समय पर हमें आंदोलन किया। तो हम
अपने उन 84 करोड़ जो हमें कहे जाते हैं, किसी समाज के 84 करोड़ देवता हैं, तो हम क्या अपने 84 नायकों को नहीं बना सकते? अगर हम अपने 84 नायकों का एक लिस्ट बना करके रखें तो हमें लगता है कि हमारे आंदोलन को और बल मिलेगा, हमको और ताकत मिलेगी कि हमारे पास केवल और केवल एक नायक नहीं है, हमारे बहुत सारे नायक हैं और समय समय पर उन्होंने अपना योगदान दिया है। हम सबके प्रति अपना आदर दिखाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपना रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने हमको इतना अच्छा मार्ग दिखाया जिससे कि आज बहुजन आंदोलन दिखाई पड़ रहा है भारत में ही नहीं बल्कि आपके इस यूरोप, अमेरिका, कनाडा और यूएई जैसे प्रदेशों में, प्रांतों में भी अपना ये भाई दिखाई पड़ता है कि हाँ, हम वो आंदोलन चला रहे हैं। जी, आप एक समाजशास्त्री हैं, आलोचक हैं। जैसे आपने हमारे सभी महापुरुषों को बताया है अब कि ये हमारे पास्ट के महापुरुष हैं जिनसे हमने सीखना है, लेकिन समस्या ये है जो हमारा समाज है वो सिर्फ एक एक महापुरुष को लेकर बैठा है। वो यही कहता है कि यही मेरा नायक है, मैंने इसकी ही पूजा करनी है, जहाँ मैंने इसको ही सत्कार देना है, किसी दूसरे को नहीं देना। सो एक समाजशास्त्री होते हुए आप क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को? देखिए, समाज कभी भी एक नायक से नहीं चलता है। अगर आप देखेंगे कि विभिन्न समाज जो हैं, मैं सबका एनालिसिस यहाँ पे नहीं करना चाहता क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं जी। विभिन्न समाज हैं, उनके अंदर कोई एक नायक नहीं है जी। समय समय पर अलग अलग नायक आते हैं, वो दिशा देते हैं। और अगर मान लीजिए आप भगवान और भाग्य में विश्वास करते हैं तो भी आप देखेंगे कि वहाँ पर कितने सारे भगवान हैं। तो आप अगर एग्जाम्पल भी लेंगे तो उसके अंदर समय समय पर लोग आते हैं और समाज को दिशा देते हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और इसलिए अगर आप एक मानते हैं जिसको बहुत ऊपर रखना चाहते हैं, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे समाज के जो नायक हैं उनको भी आपको इज्जत देनी पड़ेगी, तभी समाज बन पाएगा। समाज बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है लाना पड़ेगा और इसे हम लोग कहते हैं अस्मिता, आइडेंटिटी। कोई भी व्यक्ति एक आइडेंटिटी से नहीं जीता। जैसे आप हैं सुरेंद्र झल्ली जी, तो केवल आप सुरेंद्र झल्ली नहीं हैं, आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं और किसी के दोस्त हैं। आप केवल यह नहीं कह सकते नहीं मैं तो झल्ली ही रहूंगा, मैं तो पिता नहीं बनूंगा, मैं तो पति नहीं बनूंगा, तो समाज ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप पति बनना चाहते हैं तो आप उसकी बात करते हैं, जब आप फ्रेंड बनना चाहते हैं तो आप फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन हैं वही आप। तो इस प्रकार बहुत सारी अस्मिताओं से मिल करके समाज चलता है। उसी प्रकार बहुत सारे नायकों से मिल करके आंदोलन बनता है, विशेषकर उन समाजों का आंदोलन जिनको नेस्तनाबूद किया, जिनको पृथक किया गया, जिनको कुचला गया, दबाया गया, वो एक नायक से नहीं चल सकते। उनको बहुत सारे नायकों की अलग अलग बातों से सीख लेकर के जानना, और इसलिए हमको जानना चाहिए। अगर हम जानेंगे तभी मानेंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे? और बिना जाने अगर माना तो फिर आप उसकी वंदना करेंगे लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो हमको पूजा नहीं करनी है, बल्कि हमको एक वो देखना है कि हम रैशनैलिटी से उसको आगे ले चलें। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।